Great. So we are recording it now. We are trying to understand what is coefficient determination. So we all know, and this is what you have done many a times. Variance, total variance is equal to variance explained by the model plus unexplained variance. Okay, as simple. That is what we are trying to say, that the whole concept of model fitting is to understand the variance. Now this unexplained variance is called SSE here. Okay, nomenclature can be different on different books, so you have to keep that in mind. But variance explained by the model is this, unexplained is the residual or error or unexplained, could be any term. ठीक है, different books will use different terminologies for saying unexplained variance. It is unexplained, it is error, or just say residual or whatever. Now excuse me, sir. yeah, Sir, is this equation similar to the one outcome is equal to model plus error? outcome is equal to Model plus error. हाँ भाई, obviously this is that simple thing. Is everywhere. ये linear regression का नहीं, ये सारे regression, सारे models जहाँ model आया, total variance in the data. Yes, Let us write it this way. Total variance in the data is equal to variance explained by the model and not explained. Simple सी बात है. Okay. So this concept Yes. is everywhere. Now this variance explained should be high. That is why the what we say model should be better. Okay. Hello. Yes or no? When this is high, only then in the model good. Yes or no? Hello. Somebody asked no question, please explain. I'm asking that person. No, sir, it is not clear Yes, why sir. if it is high, then the model is better. The logic behind this. Baba, did you study the model part? What is model? Yes, sir. What is a Yes, model? sir. Sorry, What's a model? sir. What's the model? Sir, model is a definition. What you have told is a Concept बदला, definition छोड़ो. सर मॉडल एक जो मतलब हमें कोई बड़ी चीज करनी होती है उसका छोटा पार्ट होता है. That is prototype. यस सर. यार मैंने वो एग्जांपल दिया था, लेकिन मैंने 50 चीज़ें और भी बोली थी. आई एटलीस्ट लेक्चर फॉर 15 मिनट मॉडल. व्हाट एल्स इज मॉडल? तो मॉडल का एम क्या होता है? Anyone? Why are you making models? Yeah, anyone? To understand the bigger thing properly. To understand the I mean, to understand the main thing. I mean, something we are studying to understand it properly. Since we can't study the entire thing, we just take a part of it. यार तुम लोग मेरे लेक्चर रिवाइज सुनते हो कि नहीं सुनते हो? पहले ये बताओ साफ साफ. नहीं सुनते हो और मेरे कोई बात नहीं. यू नो ना, आई हैव क्रिएटेड अ प्लेलिस्ट, और यू डोंट नो. लेट मी शो यू, बिकॉज आई एम अगेन, इस बात को मैंने इतना स्ट्रेस किया था. व्हाट इज अ मॉडल?
So this is, you go to this channel, subscribe, don't subscribe is secondary, but if you don't understand you have to listen it. Then playlist, then statistics. In that you have multiple things. Goes through, I mean, middle of the point. Okay. ये जो मॉडल फिट है ना, यहाँ मैंने सर फोड़ के बताया व्हाट इज मॉडल. वाई एम सेइंग सर फोड़ बताया बिकॉज मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ तुम लोग चीज़ समझो. तुम लोग बस आते हो क्लास में बैठने के लिए. And you think by asking you understand. You don't do any homework of this sort, which makes it difficult for me to understand. If you want कि मैं तुम्हें बस एक किताब दूँ तो फिर डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम होगा. ये सिलेबस है, ये लो ख़त्म जाओ. अप्लाई फिर तुम्हें आता नहीं होगा, करते रहोगे बैठिए. इट मेक्स मी एंग्री यार. मतलब कम ऑन, मुझे क्या पड़ी है, मैं हैरी का उस पर जाके ढूंढ रहा हूँ कि क्या होता है. भाई बच्चों को डेटा एनालिसिस सीखना चाहिए, जल्दी आ जाए 5 मिनट में. तो तुम्हें ढूंढना चाहिए व्हाट आई एम सर्चिंग दैट. स्पीड स्लो रहेगी, मुझे कुछ नहीं है. कोर्स तो चलो छोड़ो, तुम्हें याद रहेगा नहीं याद रहेगा मुझे भी नहीं पता. Yeah, so we made a prototype, ठीक है, of the information. Hello, the person who asked me, who told prototype, ये जो मॉडल फिट वर्ड यूज होता है, ये फिटमेंट क्यों वर्ड है? Why the word fit is used? कहाँ फिट हो रहा है? Yeah, anyone? The person who asked me, especially that. I am happy that you are asking. At least those who are not asking, they don't know anything. But I will request. Sir, sorry, your voice is a bit lagging. Can you please repeat the last sentence? I am saying, if you are asking, that's good. But if you study, it will be better. Okay, I am asking what is this fit? I also use because we are trying to fit the data model in our data set. We are trying to fit the model in data or data in model? Model in data, not data in model, because it's always the model which fits the data. Yeah, so it is always the model which fits the data. And how do we understand? Whatever variance is of the data is present in the data, that should be explained or that should be identified by the model. अब देखो ध्यान से, what is this variance? बड़ा कर देता हूँ. What is total variance? Sum of Explained and unexplained variance. नहीं, अरे यार इसको बताओ, अभी ये छोड़ दो. How do you calculate total variance? How do you calculate y minus y? Y minus? Y minus y bar square. Y minus y by square. अब तुमने मॉडल बनाया, so you have got new y's, yes or no? Yes, sir. So we are saying that at a particular x it should be
y calculated instead of y observed? Yes or no? Yes, no. Is y observed is equal to y calc? जो सब सही है, परफेक्ट मॉडल फिट है ना? Yes, sir. तो कोई एरर नहीं होगी. Yes, sir. तो explained variance will be very high or will be equal to SST. Yes or no? Hello. It will be equal to our original variance then. Yeah, that's what I'm saying. It will be equal to the original variance. Original variance नहीं कहते भाई, total variance कहते हैं. ठीक है? Yes, sir. Total variance. Okay. So the model is completely, perfectly fit over data because the explained variance is equal to the total variance. But as we knew that y observed और y calc में फर्क आएगा. Yes, sir. Obviously आएगा. ऑब्वियस तो मुझे नहीं पता, आएगा. तो मतलब ये है कि ऑब्वियसली अब ऑब्वियस ये है कि मॉडल फिट 1 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 1 तभी होगा जब दोनों डेटा फिट बैठेंगे, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू होगी, है ना? फिर वो ओवरफिटिंग मॉडल भी तो हो जाएगा, क्योंकि फिर मतलब प्रेडिक्टेड वैल्यू अदर वैल्यूज पता नहीं अरे फिर यार fit हो तुम देखो testing स्टैट्स पढ़ fit के, होंगे। नहीं स्टैट्स पढ़ के आए हो, गुड. व्हाट इज ओवरफिटिंग मॉडल? टेल मी दैट. Which actually fits completely to our testing data set. अब तुम और एग्जैक्टली फिट क्या होता है? Suppose we have a data set and we divide the data set into two formats. या देखो हम लोग मशीन testing- लर्निंग की बात कर रहे हैं क्या, जहाँ पे मैं रियल डेटा, मैं ट्रेनिंग डेटा सेट और टेस्ट डेटा सेट की बातें कर रहा हूँ. हमने डिवाइड किया है क्या यहाँ पर? पहले मुझे ये बताओ, क्या हमने यहाँ No, पे टेस्ट और ट्रेन डेटा में डिफरेंशिएशन करी है? No, sir. तो तुम कंसेप्ट वो वाला यहाँ क्यों ला रहे हो? वो रिग्रेशन वहाँ पे कहाँ लगता है? वहाँ कोई मॉडल फिटिंग कहाँ हो रही है? वहाँ पर टेस्ट डेटा से एक मॉडल निकाला जा रहा है, जो ट्रेन डेटा से एक मॉडल निकाला जा रहा है, जो टेस्ट डेटा फिट किया जा रहा है. अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई ये टेस्ट ट्रेन डेटा क्या होता है. देयरफॉर द पॉइंट इज नो सिंपल थिंग्स एंड विच कैन बी एक्सप्लेन टू लेमैन. अब तुमने ये तो दिखा दिया तुमको वो आता है, बट तुमने ये भी दिखा दिया कि तुमको यहाँ ये समझ में नहीं आ रहा है कि दोनों में टेस्ट ट्रेन डेटा नहीं है. सो आई एम नॉट स्कोल्डिंग यू फॉर दैट. इट्स गुड दैट यू आर स्पीकिंग. I am not scolding you in fact, or I am not against you. I am against the point. That please, Yes, sir. Got it. please see that. Okay, so it is not. देखो, many people say कि हाँ भाई ये बहुत डांटते हैं. मेरा simple है. I am against the point. It is not that. No, sir. I am not complaining is sir about. नहीं वो बहुत से लोग हैं, ठीक है. I am against the point. I am not against anyone. Therefore I am very. साक्षी आ गई क्या? नहीं आई. आज गोली दे दी. Anyways, ठीक है. So again, just forget the test and retest क्या, test and train data. Point is observed and calculated should one only, then you will have y explained variance, total variance, which is not possible because otherwise the model fit की जरूरत ही नहीं है और the data is completely explained. If this is what happening, r is equal to 1, then you say data is completely explainable by the model, and which is a great achievement. कि आपने एक ऐसा मॉडल निकाला है जो पूरा डेटा एक्सप्लेन कर देता है, बट आइडियली ये नहीं हो पाता. ठीक है, तो जहाँ पर ये नहीं हो पाता वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं आर स्क्वायर. कितना अच्छा मॉडल है. प्लीज़ अंडरस्टैंड, दिस टेल्स यू दैट इफ द मॉडल इज गुड, दैट मीन्स if this is a good model, what is the value range of the intercept and the coefficient with the accuracy of 95% if you draw samples of similar times from a population. समझ रहे हो? हेलो, yes or no? ठीक है. Again, मैंने I told multiple things that you are drawing a sample 95 times, it will be accurate and there will be a range. Okay. चलो ठीक है. Anyways, so this is how we get R square. And I have written the, what we say,
details here, you can check it out. ये difference of in those sort of things are there. ठीक है. Anyways, now we are going to ANOVA. Is 318 because ANOVA is one section there. Sorry, इसमें नहीं, इसमें. हाँ, ध्यान से देखो. ये टेबल और ये टेबल कुछ सिमिलर लग रहा है. दिख रहा है ये टेबल और ये टेबल. यस, नो, वैसा ही है ना, मोटा मोटा. So, बाकी सबको आ रहा है भाई? क्योंकि देखो, अगर ये एग्जाम में कैलकुलेशन के लिए आ गया और आपने अभी हाँ कर दिया, बाद में करना मुश्किल हो जाएगा. ठीक है. एंड सिमिलर रिजल्ट वी ऑल्सो गेट इन अनोवा. अनोवा में भी देखिए यहाँ पर ये आता है. सो देखो, अब यहाँ क्या लिखा है? बिटवीन ग्रुप्स. और यहाँ क्या लिखा है? रिग्रेशन. यहाँ पे क्या लिखा है? विद इन ग्रुप्स. और यहाँ पे क्या लिखा है? रेसिडुअल. तो अब यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट रिग्रेशन इज, व्हाट अनोवा इज. सो हमने भी कल भी बात करी थी. अनोवा इज ट्राइंग टू ग्रुप फाइंड अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल which can say that there is a pattern in the dependent variable which is different for the levels of the independent variable. Yes or no? जैसे यहाँ पर किया था हमने, हमारा ये डेटा था, हमने कहा कुछ इसमें ग्रुपिंग कर देते हैं, ग्रुपिंग करके देखते हैं. देन वी सेड कि हाँ, ये तीन ग्रुप के एवरेज अलग हैं, वेरिएंस अलग हैं, तो मतलब ये ग्रुप अलग हैं कि नहीं है? Yes or no? That means you can subdivide your data in groups. There is pattern in the pattern. समझ रहे हो ना? है कि नहीं? Now it's just like this. Why we do it? Suppose, let me give you example why we have this intuition or like inclination to find patterns in the pattern. So suppose I take data of 100 people and I take their marks and their sleeping time. ठीक है, waking up time. Okay, ठीक है. हेलो. तो किसी का मार्क्स सबके एक ऑर्डर में होंगे और किसी के मार्क्स और किसी के जो स्लीपिंग टाइम होगा, कोई 6 बजे उठता है सुबह, कोई 8 बजे उठता है, कोई 5 बजे उठता है, कोई 2 बजे उठता है. इन दिस वे देयर विल बी मल्टीपल थिंग्स. नाउ इट इज पॉसिबल व्हेन यू आर रिग्रेसिंग दीज टू दैट द एवरेज ऑफ, नहीं सॉरी, इफ यू जस्ट टेक द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इनिशियल स्कोर्स, यू विल से दैट सर इसमें एवरेज ये है, इसका स्प्रेड ये है, इसका स्क्यूनेस कर्टोसिस ये है, सब कुछ है. बट उसमें और समझने की क्या चीज़ है? कैन वी से दैट इट इज इक्वल फॉर ऑल? नो. देन यू से लेट अस फाइंड समथिंग एल्स. देन यू माइट फाइंड दैट दोज हु वेक अप अर्ली, they are getting marks in the range of 80 plus. Those who are waking up at 8 o'clock, they are getting in the marks to 60 to 80. ठीक है? So you are able to find a pattern inside a pattern. Okay? Hello. Yes. So your data can be divided. It is not always it can be divided. अगर ऐसा है कि तुम्हें दिखता ही नहीं है, तुम्हें लगता है कि यार चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे कोई भी टाइम हो, तब मार्क्स में कोई फ़र्क नहीं है, तो यू कैन से वेकिंग अप टाइम डज नॉट अफेक्ट द मार्क्स. यू कैन ईजिली कंक्लूड. बट इफ़ यू हैव टू से डज वेकिंग अप टाइम इफेक्ट द कंक्लूजन, द मार्क्स. ठीक है?
अब मेडिकल टर्म में क्या होता है, मेडिकल टर्म में आपने सुना होगा कंट्रोल ग्रुप, सुना था ना, रणदीप गुलेरिया कहते थे क्लिनिकल ट्रायल होंगे, वी विल टेक का एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, उनको हम दवाई देंगे, दो सॉर्ट ऑफ वर्ड्स यू हैव हर्ड. Yes sir, control is the मतलब जहाँ से रेफरेंस नहीं लेते हैं उसको. नहीं नहीं, तो उसमें दो ग्रुप होते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट में, वन इज विद ट्रीटमेंट, वन इज विदाउट ट्रीटमेंट. तो द विद ट्रीटमेंट इज द एक्सपेरिमेंट ग्रुप एंड द विदाउट ट्रीटमेंट इज द कंट्रोल ग्रुप. ठीक है. सो एक ग्रुप को दवाई दी जाएगी, एक ग्रुप को दवाई नहीं दी जाएगी. ठीक है. अब अगर वैक्सीन काम कर रही है तो कुछ दिनों बाद देयर शुड बी डिफरेंस बिटवीन पीपल who have taken medicine and people who have not taken medicine. Yes or no? तभी तो कहोगे दवाई काम कर रही है नहीं कर रही है. Yes sir. सो वही चीज़ आपको हम करने अनुभव में बता रहे हैं कि देखो ये सब पढ़ना पूरा. दिस इज दिस बुक B5. ओके. सो इफ द ग्रुपिंग, तो कैन वी से द ग्रुपिंग is causing the differences the levels. yes. अगर हम लोग वैक्सीन देते हैं, वैक्सीन काम करती है, तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं ना, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ एंटीबॉडी लेवल बिटवीन टू ग्रुप्स. yes or no? Yes, sir. And how do we create group? We create group by vaccine. So we can say there is a effect of vaccine on creation antibodies. ठीक है. Yes, sir. सो ग्रुप कैसे भी क्रिएट कर सकते हैं. सपोज ग्रुप इन कुड बी ट्रेनिंग 1, 4 ट्रेनिंग है, एक को हर्ष सर पढ़ा रहे हैं, एक को आशुतोष सर सैच पढ़ा रहे हैं सर मान लो, एक को मैं पढ़ा रहा हूँ वेबएक्स से, एक को पढ़ा रहा हूँ मैं गूगल मीट से, एक को मैं पढ़ा रहा हूँ ब्लैक बोर्ड से. ठीक है. एक को मैं पर्सनल ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, मतलब पर्सनली इन द सेंस अपने घर बुला के. तो ये 4 ग्रुप हो गए नहीं हो गए? यस. Yes, sir. होगा. और मैंने फिर हर ग्रुप में 10 बच्चों के नंबर लिए, भैया एग्जाम में कैसे हैं, है कि नहीं. नाउ द पॉइंट इज आपके सीनियर्स क्या करते हैं आप लोग बताओ. ये मैं लास्ट टाइम भी बताया कि अगेन take this very seriously, that again this example, let us take two people, two cases. I am teaching by Google Meet and I am teaching by Blackboard, and I have took students score of 10 students. ठीक है. एंड अभी हम स्टैट्स फैक्ट में लगा रहे हैं, हमने उनका एवरेज निकाला, तो क्या हम कुछ कंक्लूड कर सकते हैं? उनका एवरेज डिफरेंट आया, हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? चलो मान लो 60 बच्चे हैं, मैं MBA कोर को पढ़ा रहा हूँ बोर्ड के साथ, MBA रेगुलर को पढ़ा रहा हूँ गूगल मीट के साथ. और अब ये मैं तुम्हें एग्जांपल इसमें दे रहा हूँ, तुम लोग रिलेट करोगे. मैंने तुम लोगों के स्कोर रिकॉर्ड कर लिए और हमने देखा स्कोर में डिफरेंस है. लेट्स से रेगुलर गॉट लेस देन, चलो लेस ही कर देते, लेस देन IB. तो क्या मतलब निकलेगा इसका? इसका क्या मतलब निकलेगा? Teaching on board is more effective. एक और कोई? IB people are more smarter than core. और कोई है? अब देखो, एक इन्फ्रेंस किसके बारे में है? IB पीपल के बारे में, ठीक है. और एक इन्फ्रेंस है टीचिंग मेथड के बारे में, है कि नहीं? यस और नो? Yes, sir. अभी मैं इन्फ्रेंस सही है गलत है ये नहीं बोल रहा. लेट्स अज्यूम कि मान लो मैंने इंश्योर किया है कि IB एंड कोर पीपल आर इक्वली स्मार्ट. अब क्या इन्फ्रेंस आएगा? Only the conclusion one. ओनली द
first conclusion that regarding the methodology. अच्छा, अब मैं एक और स्टेटमेंट देता हूँ. स्टेटमेंट 1, टीचिंग मेथोडोलॉजी इज बेटर देन, सॉरी, एमबीए को किससे पढ़ा रहा था मैं? एमबीए कोर को ब्लैक बोर्ड से कि उससे, गूगल मीट से? मीट पे. हाँ. सो ड्राइंग बोर्ड टीचिंग इज बेटर देन गूगल मीट. एक इन्फ्लुएंस ये निकाला, ठीक है? ओके, ये निकलता है ना? Yes sir. और दूसरी स्टेटमेंट है ड्राइंग बोर्ड इज बेटर देन गूगल मीट फॉर दिस सॉर्ट ऑफ पीपल विच इज मोर एक्यूरेट. तुम लोग अभी भी समझ में नहीं पा रहे हो, मतलब दैट इज वाई द प्रॉब्लम इज कमिंग. और मैं बार बार, मेरे को क्या होता है, until unless you understand, मैं आगे बढ़ने मूड नहीं करता. हाँ, तो विच वन इज बेटर? पहली स्टेटमेंट, दूसरी Yes sir. स्टेटमेंट? The second one, that whiteboard is better for these sort of people because we cannot generalize by the just by our experiment. If we have to generalize, then We have to do on a large base how much? with more samples. चलो ठीक है, 5 कितने सैंपल? भाई कोई और नहीं बोल रहा तो मैं कुछ कहूँगा नहीं, सिद्धार्थ ही बोल रहा. हाँ, कितने सैंपल? सर वो फिर वापस से वो क्या कहते हैं, मीन वाली सैंपल लेके नॉर्मल कर्व बनाना, जेड स्कोर निकालना, ये वाली फिर वापस से पूरी स्टोरी स्टार्ट हो जाएगी. भाई मैंने तुमसे क्या क्वेश्चन, सिंपल सा देखो, सिंपल है. तुमने कहा था सैंपल बढ़ाना, तो भैया कितना सैंपल? लेट्स नॉट गेट इनटू जेड एंड वेट राइट नाउ. You said no sir, second one is better. Okay, then if I say if I have to generalize, what I have to do? You said that sample size बढ़ाना है. तो हाँ भाई, sample size बढ़ाने से कितना sample चाहिए? 50, 100, 1000, 1 लाख, 100, 200, कितना? Instead of increasing sample size, we should perform more number of trials. हाँ, more number of trials. Trials मतलब कैसे करोगे? ट्रायल्स नंबर मतलब आज भी पढ़ाओगे, कल भी पढ़ाओगे, परसों भी पढ़ाओगे, ऐसे करके हर साल करोगे? सर सेम बैच का अगर एक बार ही करेंगे और उसी के बेसिस पे जनरलाइज करेंगे तो ये तो नहीं, तो मतलब मैंने तो ये नहीं कहा ना, मैंने ये नहीं, मैंने तुमसे, मैंने पहले डिसाइड करना आई है डिड हम यही करना नॉट, है. आई डिड नॉट से कि जनरलाइजेशन होगा. मैंने बोला अगर जनरलाइज करना है तो क्या करना है. मैं बस इतना पूछ रहा हूँ. या तो बोलो सर कर ही नहीं सकते, और तुम्हारे प्रोजेक्ट्स की मैं भी बात करूंगा, अगर तुम लोग अभी तक वो बात समझे नहीं हो, मेक्स मी एंग्री समहाउ. एनीवेज, क्या करें, मुझे भी वो बनना पड़ेगा. कौन था वो वुमन, कौन था वो मुन्ना भाई एमबीबीएस में डॉक्टर जो भी था? एनीवेज, साहिबुल्लाह. हाँ भाई बताओ जी, मिश्रा जी, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? सर मैं सोच नहीं पा रहा हूँ उतनी दूर तक, मेरे हिसाब से नहीं कर सकते. अगेन यू पीपल आर फ्लैटलिंग, मतलब मैं आप ही को बोल रहा हूँ, आई एम नॉट ब्लेमिंग द स्पीकर, बट द पॉइंट, यू हैव नॉट अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ सैंपल इन एप्लीकेशन. द सेकेंड स्टेटमेंट विच वी सेड दैट teaching method of board will be better than Google Meet for this particular group. इसमें हमारी population ही हमारी sample है. So whenever you use the word generalization, it actually means you are trying to infer from sample to a population. So first of all, अगर आपको generalize करना है, which means you want to infer from the sample about the population, first thing you have to ensure or say कि is my sample representative of the population. क्या मैं ये कह सकता हूँ that teaching method is of class of board is better than Google Meet for MBA students, या मैं ये कह सकता हूँ for BHU students, या मैं ये कह सकता हूँ फॉर एवरीवन? समझ रहे हो?
सर फॉर एवरीवन कहने के लिए तो फिर हमें पूरे मतलब अलग अलग नहीं, इंस्टीट्यूशन मैंने में ये करना थोड़ा पड़ेगा ना, कहा, ये मैंने तो सिर्फ नहीं लिसन, मैंने ये नहीं कहा कि स्टेटमेंट वन इवन इफ यू generalizing may be for what, for MBA student, all MBA students, or for all BHU students, for all everyone, then you are तो सर फिर वो इसमें यही होगा कि तुम सुन for रहे only हो, the तुम समझ रहे हो, core- तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ. You have to first of Yes, all sir. understand the population you are talking about. Whenever you talk of generalization, पहले population define करो, किसके लिए generalize कर रहे हो. ओके सर. तुम लोग हमारा ये इंटरव्यू में क्वेश्चन था ना, पॉपुलेशन क्या है, सैंपल क्या, देखा था वो, पूछा था सबसे पॉपुलेशन क्या, सैंपल क्या है, याद है? यस और नो? यस सर पूछा गया था. मैं Yes, sir, आप पूछा लोग को गया एक था. चीज बता देता हूँ, जब आप लोग का प्रेजेंटेशन 26 तारीख से होगा, मैं एक्सप्लेन करने वाला कुछ नहीं हूँ, मैं बस इवेलुएट करूंगा, और अगर नंबर कम आते तो चिल्लाना मत, तब मैं बताऊंगा नहीं कोई गलती क्या है. अभी मैं गलती बता रहा हूँ, तब मैं गलती नहीं बताया, हाँ भाई था नेक्स्ट, मैं ऐसे करूँगा, वेरी गुड नेक्स्ट, फिर आप मार्क्स देख के समझ जाना. एनीवेज, सो फर्स्ट इज पॉपुलेशन. ओके, नाउ इवन इफ यू हैव द पॉपुलेशन, लेट्स से इट इज फॉर BHU स्टूडेंट्स एंड यू हैव इंश्योर्ड that sample is represented of the population, still you cannot say it is generalized. So you can say, we can say with the surety of 95% or 90% that for this population, teaching method of board is better than Google Classroom. समझ में आया? नहीं आया? सर वन थिंग, यहाँ पे हमारा जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ MBA स्टूडेंट्स हैं या पूरा BHU है? वो तुम पर है ना. अगर तुम यार फिर वही क्वेश्चन पे आ गए तुम, पॉपुलेशन क्या है नहीं, वो अगर तुम पर सर है. अगर पॉपुलेशन सिर्फ MBA स्टूडेंट्स हैं तो फिर हमारा सैंपल ही हमारा पॉपुलेशन है. हाँ, और अगर पॉपुलेशन तो BHU है तो हमारा सैंपल. लिसन, अगर सैंपल ही पॉपुलेशन है तो 95% की बात ही नहीं है. तो या तो इफेक्टिव है या तो इफेक्टिव नहीं है, दो ही चीज होंगी, कोई 95% नहीं होने वाला. हाँ, आप कहेंगे इस फिर तो इफेक्टिवली. हाँ, हम बोलेंगे इन लोगों के लिए, स्टैटिस्टिक्स के कोर्स के लिए गूगल मीट बेटर है या बोर्ड बेटर है, बस खत्म बात. देयर इज नो एक्यूरेसी लेवल. ठीक है? ओके, समझ रहे हो? यस सर. नाउ अब पहली बात तो, क्या तुम इसको BHU का सैंपल मान सकते हो? पहले तुम ये बताओ. नहीं. इसको तुम नहीं. IMS का सैंपल मान सकते हो? IMS नहीं, क्योंकि इसमें फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों के स्टूडेंट्स हैं. हाँ, अब देखो, अब यहाँ पर तुम्हारा ये अजम्पशन है, कोई कहेगा भैया क्या फ़र्क है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में सैम्पलिंग में, तो यहाँ पर ये तुम्हारी डिबेट है. अब मैं यही कह रहा हूँ, पॉपुलेशन क्या है तुम्हें जस्टिफाई करना पड़ेगा कि सर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में डिफरेंट तो है, लेकिन क्या वो डिफरेंस फ़र्क पड़ रहा है? अगर आज मैं तुम्हारे सीनियर्स को उठा के यहाँ बिठा दूँ तो क्या उनको फ़र्क पड़ेगा या वो भी ज़ीरो रहेंगे? समझ रहे हो? जैसे मोबाइल फ़ोन बनता है तो मोबाइल फ़ोन में तो जैसे ना यूज़ के लिए बनाया है कि नहीं? तो आइडियली तो भैया 15 साल का यूथ और 25 साल के यूथ में फ़र्क है कि नहीं? यस सर. बट द पॉइंट इज द इफेक्ट, is the difference good enough to cause a change? Like if you have some strength, I have some strength, and we both have to lift 100 kgs separately, हम दोनों डिफरेंट हैं? यस सर. हम दोनों की ताकत डिफरेंट है, ऑब्वियसली. बट क्या इफेक्ट डिफरेंट है उठाने का? हाँ, इफेक्ट भी डिफरेंट होगा. ना तुमसे उठेगा 100 किलो का, ना मुझसे उठेगा. उठ जाएगा 100 किलो का तो बता दो, तुम्हें फिर ओलंपिक में भेज देते हैं. नहीं, मेरे से तो ना मुझसे उठेगा. So here our differences are not causing any effect. It is not that the point is not that there are differences or not. The point is, are there differences which could affect? जैसे तुमने फर्स्ट सेकंड ईयर बोला, वो फर्क तब पड़ेगा अगर तुम्हारे सेकंड ईयर की जो मैथमेटिक्स है वो फर्स्ट ईयर से बेटर हो. लेकिन अगर वो भी वो हैं, गोल हैं,
तो सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर क्या फ़र्क पड़ता है? यस सर, फिर तो कोई फर्क नहीं है। तो बात ये है, अगेन देखो, स्केल अगर तुम रेजोल्यूशन पढ़ा है तुमने, अब कोई बात नहीं कर रहा, देखो नो बडी इज टॉकिंग, आई एम टॉकिंग टू हिम, सो अब मैं क्या करूँ, लेट्स गो एंड, तो सपोज यू एंड आई मेजर, और यू मेजर, ठीक है, एक पॉइंट है, वो स्केल लिया है तुमने, उसमें सिर्फ है 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और बीच की कोई मार्क्स नहीं है, ओके, हेलो, यस सर। अब कोई पॉइंट है Yes, sir. जो एक्चुअली 5.3 पे ही मार्क्ड है, 5.4, यू डू नॉट नो बिकॉज आपको स्केल पे नहीं पता, लेकिन मैंने एक्चुअली में 5.3 और 5.4 पे किया है। जब आप स्केल रखेंगे तो आप उसे क्या बोलेंगे? जब आपको मैं ऐसा स्केल दूंगा जिसमें बीच के वो नहीं है, 5 के बीच में, 5 और 6 के बीच में नंबर्स, तो आप क्या बोलेंगे उसको? ये दोनों 5 हैं, दोनों 6 हैं, क्या बोलेंगे आप? 5 है। दोनों नहीं, 5 है कि 6 हैं, क्या बोलेंगे आप? यू विल से सर ये तो स्केल के बीच में अगर कुछ नहीं, फिलअप आप- नहीं है, मतलब हाँ, मिलीमीटर या जो भी हाँ। स्केल्स हैं वो फिलअप नहीं है, तो फिर हम उसे देखेंगे कि अगर वो 5 के पास होगा तो फिर हम बोल देंगे कि 5 के हाँ, तो लगभग दोनों में, 5 है ना? 6 के पास होगा तो बोल देंगे। आइडियली आर दे डिफरेंट और नॉट? आइडियली दे आर डिफरेंट, यस सर। बट यू कैन नॉट मेजर दिस डिफरेंस। टेलीस्कोप में क्या होता है, हम लोग जो कहते हैं द सेल्स, हमें कुछ दिख नहीं रहा, तो रेजोल्यूशन बढ़ाते हैं, तो रेजोल्यूशन बढ़ाने पे डिफरेंस दिखता है, एक्चुअली हर चीज डिफरेंट है। क्वेश्चन ये है, क्या आपका सैम्पलिंग इंस्ट्रूमेंट उसको डिटेक्ट कर पा रहा है कि नहीं? अगर हर्ष और मैं, हर्ष और आपका नाम मिश्रा जी, में ताकत है, तो ताकतवर वही है जो 100 किलो को उठा पाएगा। आप में मुझ में ताकत में डिफरेंस Yes. है, लेकिन 100 किलो का अगर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगा करोगे तो आप और मैं बराबर हैं। यस सर, क्योंकि दोनों लोग नहीं उठा पाएंगे। हाँ, अब वो 10 किलो का हो तो फर्क पता लग जाएगा, हाँ भाई इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है। Therefore, never ever say sample is different or not. Therefore, we say does the difference is significant or not. सिग्निफिकेंट के दो मतलब होते हैं, एक तो क्या सैंपल और पॉपुलेशन में डिफरेंस है, और दूसरा क्या डिफरेंस देखा जा रहा है। ठीक है, यस सर। ये जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप में से 10-15% के लोग ही क्रैक कर पाएंगे आपके प्रोजेक्ट में, और अगर इस डिबेट के बाद, इस डिस्कशन के बाद 80-90% लोग क्रैक कर पाते हैं इसको अपने उसमें, तो आपका प्रोजेक्ट का आधा काम तो हो ही गया। आपको ये समझ में आ गया सैंपल, पॉपुलेशन और इफेक्ट में क्या फ़र्क होता है, प्रोवाइडेड यू अंडरस्टूड, यू लर्न इट। एनीवेज, गोइंग बैक, सो व्हाट वी वर सेइंग, किसी ने मुझसे पूछा था सिग्निफिकेंट इफेक्ट क्या होता है, क्वेश्चन वहाँ से स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था यहाँ से, तुम लोग पढ़ोगे नहीं तो इट विल टेक मोर टाइम, और हो सकता है या तो फिर मैं एक्स्ट्रा क्लास के भूत में आ जाऊँगा या फिर मैं कोर्स छोड़ दूँगा, डिसाइड तुम लोग कर लो, ठीक है, कि क्या तुम्हारे लिए बेटर है। एक्स्ट्रा क्लास के भूत में अगर सैटरडे को मैं बैठूँगा 2-2 घंटे, 3-3 घंटे की क्लास लूँगा, अगर कोर्स ख़त्म करने की बात है। नहीं तो फिर भैया तुम लोग आधा अधूरा पढ़ के जाओ, उसी भरोसे अपने कॉर्पोरेट में सर फोड़ो, और डेटा साइंस जो भी है देखो, वो तुम लोग डिसाइड करो, बिकॉज दिस इज़ वेरी स्लो। आई एम स्टिल एक्सप्लेनिंग टू यू व्हाट इज सैम्पल, व्हाट इज पॉपुलेशन। We are stuck still on same point. It is primarily because you are not revising, and primarily because you are not reading, primarily you think कि बस हो गया, अभी भी तुम लोग को झटका नहीं मिला है, ठीक है। Anyways, तो क्वेश्चन जिसका था एक्सप्लेन्ड वेरिएंस जो होता है, हमने बात करी थी कि डिफरेंस बिटवीन y ऑफ द y कैलकुलेटेड। नाउ कमिंग बैक टू अनोवा, अनोवा में यहाँ पे लिखा था बिटवीन ग्रुप्स एंड विद इन ग्रुप्स। सो बिटवीन ग्रुप्स वेरिएंस और विद इन ग्रुप्स वेरिएंस, हमने ये बात करी कि भैया ग्रुप के बीच में वेरिएंस हो सकता है, जो परसों भी करी थी, कल भी करी थी, सॉरी कल हमने करी थी, या ये सब ऑल दिस इज विद इन ग्रुप, दिस इज बिटवीन ग्रुप। सो व्हाट आई वाज शोइंग टू यू इज दिस, दैट दिस इज व्हाई इट इज रिटन ट्रीटमेंट, it is not this group. You can say it is group, you can say it is treatment.
ठीक है, जैसे हमने कहा कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक्चुअली वो लोग है ट्रीटमेंट एंड नो ट्रीटमेंट. सो वट एवर बी द केस इज, सो डोंट गेट कंफ्यूज विद ट्रीटमेंट विद इन ट्रीटमेंट. ओके, नाउ सपोज now you have to understand what is n or a. Let me check. I think a is number of groups. ये आपको मिल जाएगा ऊपर. No. Wait. This is 9.3. तुमको पढ़ाने से पहले मुझे पढ़ना पड़ता है, तो भाई तुम लोग ही पढ़ो. मैं तो इतना पढ़ने के बाद पढ़ रहा हूँ. Why do you think you will get it in one strike? हाँ. सो ए इज नंबर ऑफ वैल्यूज, मतलब जैसे हमने बात करी थी डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 होता है ना. हेलो, याद है कल इसकी बात करी थी हमने. Yes sir, n-. ये तो यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ वैल्यूज. ठीक है, सो वी सेड कंप्लीटली यहाँ पर n-1. सो सी यहाँ पर a क्या है, नंबर ऑफ Equations. no yeah, number of equations. or number of group precisely, that is I was trying to find. ये वाला a is number of groups. और नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स. जैसे कि हमारे पास कितने ग्रुप हैं यहाँ पर, यहाँ पे कितने ग्रुप हैं? Sir, 3. तो a-1, 3-1, ठीक है, 2. ओके ओके, यस और नो? Yes sir. उसके बाद Yes, विद इन ट्रीटमेंट हमने कहा था n-a डिपेंडिंग ऑन इक्वेशन, नंबर ऑफ इक्वेशन. ओके, n-a. सो n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स. नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर हैं 18 एंड ग्रुप्स कितने हैं? 3. सो हाउ मच इट बिकम्स? 15. नाउ हाउ आइडियली हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर टोटली? हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? ये कितने हैं? हेलो, Sir, कितने हैं? 18. 18. सो अगर हम कुछ ग्रुप नहीं करते, हम कुछ ग्रुपिंग नहीं करते, हम कहते कोई ग्रुप नहीं है, तो टोटल ये होते 18-1 डिग्री इज दिस वन इक्वेशन इफ और वी कंबाइन ऑल देम, देयरफॉर इट इज 18-1. दोज हु वांट टू अंडरस्टैंड द मैथ कि सर ये ए क्या है, बी क्या है, तो प्लीज स्टडी दिस बुक, अदरवाइज यू गोट टू मेमोराइज दिस. ओके, आइदर यू स्टडी दिस Yes बुक sir. एंड गेट ऑल डिटेल्स, क्यों सर ये क्या होता है, ये कैसे होता है, ठीक है. बट अभी क्लास ही इतनी धीरे चल रही है तो मैं क्या कहूँ, अब तुम्हें रटना ही पड़ेगा फिर. सो दिस इज ग्रुप -1, दिस इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स माइनस नंबर ऑफ ग्रुप्स, एंड दिस इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स -1. ठीक है, ओके, यस और नो? Okay sir. अब I have to say that all this I will expect you to do it on paper, that I will say please calculate the F ratio. F ratio कैसे आता है? Which is coming by here dividing of this by this, SB by SW. अब क्योंकि मैंने काफ़ी समझा दिया है, I expect, and I am directly saying expect, that you can calculate it. बिकॉज माई मेन फोकस इज आपको पहले पता लगे टूल कहाँ अप्लाई करना है, और फिर टूल कौन सा अप्लाई करना है, और फिर 3 टूल की रीडिंग को कैसे रीड करना है. ये 3 काम है. मैं पहले वाले पार्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ बिकॉज द फर्स्ट पार्ट इज रॉन्ग, एवरीथिंग एल्स विल बी रॉन्ग. सेकेंड एंड थर्ड पार्ट, दैट व्हाट टूल एंड हाउ टू इंटरप्रेट इज रीडिंग, that you can do on your own, and for that you please read the work. Okay, I can directly ask question like this. Let me tell you.
जैसे ये है, ठीक है, this is there, find this total variation, team variation, something like this, 9.4, okay, and then you have to do all calculation, total variance, then variance, this, and I will expect you to calculate this table, prepare this table, okay, in the examination. Okay, so now we meet 1 o'clock tomorrow. Okay, sir. Is that fine? We meet 1 o'clock tomorrow. I will upload this, and please try to wrap up by revising. Otherwise, either I have to leave the course or I have to do extra classes. There is no other course. There is no other way, because एक चीज़ समझाने में बहुत टाइम लग रहा है. ठीक है? Okay. All the best. And tomorrow, one at 9 a.m. I will close the form. Then those who are not done, don't complain anything.